when first song was shot in Switzerland, probably everybody said, oh, great visuals, let's do it again. So you start doing it again. So I think that's a recipe for disaster. What happens the first time is unique in nature, second time is not unique in nature. When even probably Dharmendra, I don't know who wrote that dialogue, he must have said कि अपनी माँ का दूध पिया तो मेरे सामने आओ. That must have been a great dialogue, I think, that's once upon a time. Now we laugh at it, but it got repeated in every film. So I think one should strive to be unique every time, but you can't have a formula. No, but there's no formula. I might falter. There are many people who made successful films, and we will strive to make films, but success or failure, there are various other reasons, I guess, for it. What are the reasons you think? One, you think you can't copy a certain formula which is already happening. But what are other formulas which you think would work? You know what, I have a set of rules which Abhijat and me follow, which we keep a little list that these are the things we should do while writing a script. You might still fail, I'm not saying that. And one of the rules, as I just said earlier, is to always try and find a unique story. The other rule is to pick triggers from life. A lot of filmmakers I meet, some of my friends also, and I find it very funny when people come and say, यार एक कमाल की DVD मिली है, let's make a film. There's another bunch of people who come and say कि अरे यार ये first half ये DVD से, second half ये DVD से, वो एक scene, एक गाना उसमें से 10 DVD मिली, इसमें से फिल्म बना लेंगे, थोड़ा मेहनत ज़्यादा है. But I always feel that if you pick from your own experiences, those scenes translate as unseen scenes. You've not seen something before, and they translate into magic on screen. So, because all of us, it's not that anybody's less. Everybody will have a life full of experiences, and if you pick from that, chances are those scenes will be not seen before. That shall be able to. It's coming on headlines today, television, and I think half an hour. You know what happens? I believe that when people tend to take extreme stands, the truth, the reality falls somewhere between two stools. There are people who believe that there is tremendous intolerance. There are people who believe there is no intolerance at all. I think both of them have taken extreme stand. The fact is that yes, there are certain incidents which show a certain level of intolerance in the society, not by the society. Let's be clear. By certain sections of society. Indian society, by and large, is a tolerant society. It was always a tolerant society, will remain tolerant. But in spite of a tolerant society, there are some people who take intolerant stances. But we have to differentiate between the society and those groups, those certain schools of thought. So, yes, there is some truth that there is a certain level of intolerance, and certain people have become, certain sections of society have become rather bolder about it. And there is another truth, that it is a tolerant society. So the truth is somewhere between two extreme stands. That's what I feel. अब फरहान तो खुद देते हैं प्रेस को इंटरव्यू, अब मुझे वो भी काम आप क्यों करवा रहे हैं, वो कर लेंगे. आपके घर में भी इस तरह से हुआ था, तो क्या आपको लगता है वाकई इस तरह का वातावरण जो कि मैं जवाब आपको दे दिया. आई हैव गिवन दैट आंसर. I don't think that the society, by and large, Indian society, is an intolerant society. And I do believe that there are certain segments, certain people, certain groups, which are becoming bolder and bolder and take very intolerant stands. But you can't blame the whole society for that.
See, I feel if you first, it's all started with this whole episode interview with Amir Khan. If you analyze that interview, it's not that Amir Khan called for a press conference and said that, you know, this is what I feel. He was called for an award function. He was asked on various topics. And one of the questions happened to be this. Now, he answered, and even if you take the answer, what he said, he's clearly said that I feel distressed. I feel sad that my wife once said this to me. Now, to me, it is a very innocent answer. उन्होंने अपने शायद होता अपने घर की बात पब्लिक में बता दी. अब उसको मेरे हिसाब से तो इग्नोर कर देना चाहिए था. मगर जिस ढंग से लोग टूट पड़े हैं, तो कहीं मुझे थोड़ा इंटॉलरेंस दिखता है. एज जावेद साहब साइड एक सर्टेन सेक्शन में दिखता है इंटॉलरेंस. पर मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा मीडिया का भी ये रोल है कि उसी चीज़ को हाईलाइट किया गया. जैसा आप अभी भी थोड़ा सा कर ही रहे हैं कि ये काम को छोड़ के आप उस काम पे आ गए जहाँ लगता है कि शायद ये हेडलाइंस बनेंगी इस पे. तो मुझे लगता है थोड़ा, आई थिंक हम सबको कहीं थोड़ा सा टॉलरेंट होना चाहिए कि, और उस बात से ये कनेक्ट कर दी गई बात कि वो मुसलमान है. और ये थॉट तो हमारे मन में कभी नहीं आया. मैंने हर दिवाली आमिर के घर में मनाई है एक्चुअली. तो ये थॉट तो हमारे मन में नहीं आता. आज मुझे किसी ने पॉइंट किया कि मैं जावेद साहब के साथ बैठा हूँ, तो हमारे मन में कभी नहीं आया कि कोई हिंदू और मुसलमान साथ में. वो थॉट आते नहीं, और ये थॉट शुड बी द लास्ट थॉट आई थिंक. तो मुझे लग रहा है कि जिस ढंग से फैल रहा है उससे थोड़ा सा एक डिवाइड आ रहा है. और उसको कहीं आई थिंक वी शुड pick up some positive things and talk about those things. We all need to be careful. The press needs to be careful. WhatsApp पे और इन सब पे मीडिया पे भी जो गंद फैलता है वो भी थोड़ा, मुझे लगता है पता नहीं क्यों थोड़ी ज़्यादती हो रही, मुझे ऐसा लगता है. See, it is fiction. Actually, this Sanju ki story was stranger than fiction. Actually, if you, it's. I'm not saying it's fiction, but stranger than fiction. When you hear the whole story, so this fell into my lap actually in a way where Sanju one day opened up and started talking about his story. मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं बैठ गया उसके साथ. 25 दिन मैं उसके साथ बैठा रहा, उसकी कहानी सुनता रहा. और the only reason to make that film is because I think it's a very engaging story, and I felt this should be told. There's no other reason. देखिए, एक बात बताऊं, जो टॉपिक निकला उसके बाद आप सवाल कर लीजिए कि कहा जाता है इट्स अ क्लीशे, ऑलमोस्ट अ क्लीशे, दैट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. वो तो होना ही है, होना ही चाहिए उसे. उसकी वजह है कि फिक्शन को ये कॉम्प्लेक्स होता है कि यार मैं सच नहीं हूँ, तो वो अपने लिए लॉजिक और आर्ग्यूमेंट और रैशनल पैदा करता है कि भाई आप मुझे बिलीव कीजिए, देखिए ये रीजंस हैं बिलीव करने के. ट्रूथ को ऐसा कोई डर ही नहीं है कि मैं ट्रूथ नहीं हूँ, तो वो है, तो उसे कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं, कोई रैशनल. इट हैज़ हैपेंड, इट हैज़ हैपेंड. तो ट्रूथ विल ऑलवेज हैव मोर रूम टू बी स्ट्रेंज देन फिक्शन. फिक्शन डर जाता है, अरे कोई मानेगा नहीं, तो ज़रा थोड़ा सा तो मैं रीज़नेबल हो जाऊँ. ट्रूथ को रीज़नेबल होने की ज़रूरत नहीं है. जावेद साहब कैन से इट लाइक दिस, परफेक्ट. सी, मेरा टेक सेंसरशिप पे ये है कि मुझे लगता है रेटिंग होनी चाहिए, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए. आपको ऑडियंस को बता देना चाहिए कि ये फिल्म एक 12 साल का बच्चा देख सकता है, 15 साल का देख सकता है, 18 साल का देख सकता है. आप रेटिंग के कैटेगरीज बना दें, ना कि एक वर्क ऑफ आर्ट को आप बैठ के डिसाइड करेंगे क्या काटना है और क्या नहीं काटना है. थोड़ा तो रिलीज के लिए रुक जाइए. It's too early. I think it's too early. I haven't even started. I'm still writing the film. It's too early. We're going to shoot next year. अभी लिख रहे हैं, प्रोसेस है, वो जर्नी है, अभी तो बनते बनते. देखिए, मैं आपको सैमुअल गोल्डविन जो MGM के मालिक थे, उनसे किसी ने पूछा कि आपने जो पिक्चर बनाई है इसमें मैसेज क्या है.
क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो उसने कहा कि whenever I want to give a message, I use the telephone. तो है क्या, अगर कहानी अच्छी है, उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन, तो उसमें मैसेज जो है वो खुद ब खुद निकलती है. फिल्म मेकर का या राइटर का काम मैसेज देना नहीं है, वो उसको सिर्फ इंसान को डिपिक्ट करे, वो ह्यूमन सिचुएशंस को डिपिक्ट करे, वो मैसेज तो खुद ब खुद निकलेगी. जब वो मैसेज देने बैठता है राइटर या डायरेक्टर, तो वो एक बहुत बोरिंग काम करता है, इसलिए कि वो मॉरलिस्ट हो जाता है और वो बोर फिल्म बनाता है. फिल्म में से मैसेज निकल आए, बहुत अच्छी बात है. अगर उसकी वैल्यूज़ अच्छी होंगी, अच्छे इंसान होंगे, उनके अच्छे ह्यूमन मोमेंट्स होंगे, तो मैसेज तो खुद ब खुद निकलेगी. आप अगर डंडा लेके बैठे, अब मुझे ये मैसेज देनी है, तो यू विल मेक अ वेरी बोरिंग फिल्म, बिकॉज यू विल आस्क योर कैरेक्टर टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द मैसेज. मैसेज नहीं दैट्स नॉट अ निकलेगा, राइट थिंग टू डू. फिर मैसेज नहीं निकलेगा, ऑडियंस निकल जाएगी. Final two questions. We're just taking two questions. तो आपका स्टैंड सेंसर के ऊपर जो भी करंट सोसाइटी देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ आमतौर से कोई क्लैरिटी नहीं है. ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से मुझे सेंसर बोर्ड, हालांकि लेट मी टेल यू वन थिंग, पर्सनली मुझे कभी कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर एक पिक्चर थी शोले, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, गब्बर सिंह का एंड में मर्डर नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो मर गए, गब्बर सिंह को सेंसर बोर्ड ने बचवा लिया. तो कहा तो एंड रीशूट करना पड़ा हमको. तो उसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम मैंने तो अपने इतने साल के करियर में नहीं देखा, लेकिन लोगों को हुआ है. और उसकी वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो गाइडलाइंस आप कितनी भी डिफाइन कर लीजिए, वो गाइडलाइंस के ऊपर पिक्चरें जो है वो सेंसर नहीं हो सकती हैं. परहैप्स व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ द क्वालिटी ऑफ द पैनल्स विच विल मैटर, कि जहाँ और ज़्यादा सेंसिटिव, आर्टिस्टिक, आर्टिकुलेट पीपल हु अंडरस्टैंड सोसाइटी, हु अंडरस्टैंड लिटरेचर, हु अंडरस्टैंड सिनेमा, अगर इस तरह का हम बनाएंगे और हम अपने पैनल्स का स्टैंडर्ड और अच्छा करते रहें, ये पैनल जो है वो कि किसी को अगर कोई काम नहीं कर सकता, अच्छा चलो इसको ऐसा करो सेंसर बोर्ड में रख दो, ये नहीं होना चाहिए. तो खुद ब खुद ये बेटर होगा. मतलब क्या क्या अगर आप सेंसर की हिस्ट्री देखें तो ऐसी ऐसी बातें, एब्सर्ड बातें मिलती हैं. एक पिक्चर बनी थी, इट वॉज ऐसी स्टंट फिल्म थी जिसमें वो हीरो छतरी में हवा में उड़ रहा है, ये हो रहा है, इस तरह की फिल्म. उस पिक्चर का टाइटल था, ये आज से कोई 40 साल 45 साल पहले की बात, ये बम्बई है. तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि नहीं, आप ये टाइटल नहीं रख सकते, ये बम्बई है नहीं, इसलिए कि बम्बई में कोई ऐसे नहीं उड़ता है. तो उसने टाइटल चेंज कर दिया और पिक्चर रिलीज़ हुई. क्या ये बम्बई है? इट इज़ अ रियलिटी. तो इस तरह की भी बातें होती रहती हैं. फिर कहीं ये आप काट दीजिए, वो जोड़ दीजिए, ये नहीं हो सकता. अब एक कोई पिक्चर बनी थी भगत सिंह पे, उनके हाथ में वो कार्ल मार्क्स की किताब थी, उन्होंने कहा ये शॉर्ट काट दीजिए. अभी भगत सिंह वॉज अ हार्डकोर मार्क्सिस्ट, वो तो आप ये रियलिटी को तो नहीं चेंज कर सकते ना, उसको निकाल देने का क्या मतलब है? और इस पे एतराज़ क्या है आपको कि अगर भगत सिंह मार्क्सिस्ट है? मार्क्सिस्ट होना क्या कोई पाप है इस मुल्क में? ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो पार्टीज़ हैं. तो कुछ इरेशनल बातें हमेशा से होती आई हैं. अब इन दिनों कुछ 2-4 ज़्यादा हो गई, लेकिन ये कोई नई बात नहीं. आई थिंक बाय एंड लार्ज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द पैनल्स. पैनल की बात आती है तो आई जस्ट आस्क वन क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट द फिल्म इंस्टीट्यूट एंड उसकी सोसाइटी जो नामी से नामी हो या एटलीस्ट एक गुड बॉडी ऑफ वर्क वाली होनी चाहिए. एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई मीन आर द सोसाइटी मेंबर्स दिस इज व्हाट द स्टूडेंट्स got is justified and the panel was the films were dropped from City this year, so there are a lot of pressure, there's a lot of action. What is your take on this since you are in society member? See, actually, I've been very closely associated with this. I've been talking to the students. I've also been talking to the ministry. And I don't think this, for me at least, is the right platform, because I've been trying to get them together and solve the problem. So I don't think I should really talk about it here. बहुत बार जो
हाँ, ये कई बार हुआ है कि ये हिस्टोरिकल नहीं है या ये हिस्ट्री के हिसाब से करेक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि शायद ये उसमें कुछ सच भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ जो हिस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट नहीं हो। बिकॉज व्हेन यू टेक हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एंड मेक ए स्टोरी, यू टेक सर्टेन लिबर्टी, इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसको बिल्कुल वो अगर बिल्कुल ही आप ऑथेंटिक बनाएंगे तो देन इट विल टर्न इनटू अ डॉक्यूमेंट्री। तो उसे फिक्शनलाइज, तो आपको डायलॉग टू डायलॉग उन कैरेक्टर्स ने क्या बात की थी और जोधाबाई ने अकबर से क्या कहा था और अकबर ने क्या जवाब दिया था, वो तो आपके पास रिकॉर्ड है नहीं। तो ऑब्वियसली यू फिक्शनलाइज थिंग्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड आई थिंक दिस मच ऑफ क्रिएटिविटी शुड बी अलाउड टिल इट डजंट बिकम डिरोगरेटरी फॉर अ रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर। तो आपको थोड़ा तो आर्टिस्टिक मार्जिन देना पड़ेगा। ये कहें ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था, हो सकता नहीं हुआ, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था वो कोई भी नहीं बता सकता। तो मोटा मोटा मालूम होता है। तो उसके बीच में जो कड़ियाँ हैं वो तो डायरेक्टर और राइटर की इमेजिनेशन से ही फिल होती हैं। एंड आई थिंक टू अगर वो डिज़ास्टर्स कोई बात ना हो जाए, कोई बिल्कुल एक डिफेमेशन की बात ना हो जाए, तब तक के लिबर्टी देना ज़रूरी है। और इस मामले में अगर टॉलरेंस का लेवल थोड़ा बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। Tell you not because I'm a writer. I'm telling you because fortunately I was in a situation, I was born or brought up in a family and then in a circle where I have seen many writers, great writers from a very close quarter, and I have spent a lot of time with them. I have lived in their houses and so on. Nobody, but nobody writes a line after drinking. It's a total myth. You see, writing is also a job like any other job. Somebody makes a machine, somebody makes furniture, somebody makes houses, somebody makes poems. And everything, every art has a craft also, and craft needs pin-sharp mind. Every craft needs pin-sharp mind. Nobody writes anything after drinking. After drinking, artists, singers, musicians, writers, poets only talk ill of other writers, other poets. That is what they do. And try to prove that they are the best. That's all. But when they have to write, they sit down like responsible people. Yes, maybe they have an idea in their mind, and the idea keeps on rolling somewhere, wandering, meandering here, there. They keep on and it keeps collecting moss. And one day the writer feels, now I am prepared enough. Their subconscious tells them that, all right, you take over now. And then they sit down and they write like responsible people. Writing is serious business. ऐसा थोड़ी दारू पी के लिखने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कहानियाँ हैं। Rajesh, my question is to you. You know, how does it feel to be everybody's favorite? So, when you ask any actor today, who do you want to work with? You know, this name pops up, Rajkumar Hirani. So, how does it feel to be wanted by each and every actor? Very good. Okay. No, obviously, we all make films to be. We want your films to be appreciated, and when it's appreciated, it becomes easier to make your next film. And ultimately, all of us want to just make films. That's our life, and the easier it becomes, then you can make the kind of cinema you always wanted to make. You can try different things. So, yes, it's. He's too modest to talk about himself, so let me take over. You see, when I had seen his first film, I didn't know him as a person. I'd never met him. But when I saw the film, I was very keen to meet him. And ultimately, we met incidentally. I mean, it's an uncanny coincidence that in a situation like this, that we were three people and we were interviewed by the media, and that was the first time I met him. And I said, because I had seen his first film, that I think for making this kind of film, you don't need only a good writer or good director or a good filmmaker. You have to be a good person also. And I hardly know him. At that time I said, now I know him much more than what I did that time. But I'm sure that he's a very nice man. Only a nice man can make this film. A good person can make this picture.
Because what you see in his films, and this is what is recurring in his films, every film has a different story. If he has carried characters like Munna Bhai and his alter ego, that doesn't mean that it's the same story. These are different stories. But what is common till PK is that you have great human values. That makes his film distinct. And you cannot, people have become nowadays, people have become clever. They have become smart. They know how to edit films. They know what are the sound effects, what is the camera effect, how they will use this dolly and that dolly, so on and so forth. But ultimately, what is there which will touch the human heart? I'm afraid more often than not, it is left to be desired. So what people lap up in his film, and why at the moment he is one filmmaker, that he appeals to the cross section of the society, is that in any section of the society they are human beings. When the film is addressing not a particular class, but the basic human being, it will be appreciated by others. The moment you move from there, then there are certain other things which will belong to a certain class. So that certain class will appreciate that film. And his films are universal because the morality or the emotion of the film is universal. Thank you, Javed sir. You should ask him all the questions. Javed sir, one question. From back in the day till today, you've literally seen the evolution of cinema, from how films used to be to how films are today. If you think I am Dada Saheb Phalke's contemporary, then you are slightly exaggerating. No, sir, but my point is that when you see films today, the cinema of today, what do you think is the thing that we should actually retain in our films even today from the earlier times, and what is the thing we should let go of? देखिए क्या है, life is not linear. It takes 2 steps forward, 2 steps backward, 1 step forward, and you just don't know. It offers you packages. There was a package in 50s, there was a package in 60s, the package today, and every package has certain good things and certain bad things, certain goodies and certain bitter pills. अब वो हम वे करते रहे कौन सा बेटर है क्या है, जिस जनरेशन का जो पैकेज होता है वो उसे ओन करके चिल्लाने लगती है यही बेस्ट है. But that's not right. The fact is, if you see an average picture of say 60s, average film, I'm not talking of every film, you see how tackily it was made. Colors are so bad, taking is so immature, performances are so melodramatic, over the top, dialogue is so flowery. ये भी है. अब वो कुछ पिक्चर अब क्या होता है कि वो छलनी से बाकी चीजें निकल गई. कौन बचा? गुरुदत्त, बिमल रॉय, महबूब, राज कपूर, सब पहले फिल्में बनती थी. ऐसा नहीं है, बहुत बुरी फिल्में भी बनती थी. और आज भी आप देखिए तो कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं और काफ़ी तो बुरी होती है. पहले भी काफ़ी फिल्में बुरी होती थी. अभी हमारा क्या हुआ है कि ऑन वन हैंड जहाँ तक टेक्निकल क्वालिटीज है, साउंड है, विजुअल है, आपको मैं एक बात कहूँ जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है. लीव असाइड एक्टर्स लाइक दिलीप कुमार और से बलराज सहानी और अमिताभ बच्चन, ये 4-5 बहुत अच्छे एक्टर. मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई एक्टर उनके स्टैंडर्ड का है. लेकिन अब देखिए पैराडॉक्स क्या है कि बाय एंड लार्ज एक्टिंग स्टैंडर्ड पहले से बहुत बेटर हो गया. जो हैमिंग पहले आपको दिखती थी वो आज नहीं दिखती है. तो ये भी कुछ अच्छा भी हुआ है, और मगर ये भी सही है कि यू डोंट हैव अनदर अमिताभ बच्चन और अनदर दिलीप कुमार, ये भी सच है, और अनदर बलराज सहानी, ये भी सच है. मगर ये भी सच है कि जो जर्नल स्टैंडर्ड है वो बहुत बेटर हुआ. इतनी हैमिंग होती थी. ये भी फैक्ट है कि शायद हमारी राइटिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं रहा है जो पहले था. लेकिन ये भी सच है कि जो क्लीशेड आप एवरेज हिंदी पिक्चर में, ये मत पूछो क्या हुआ, ये पूछो क्या नहीं हुआ, ये अब नहीं होता. माँ मुझे समझने की कोशिश करो, ये तो नहीं होता ना. थिएट्रिकल डायलॉग नहीं होते. इन एनी गुड फिल्म ऑफ टुडे द डायलॉग इज सच टाइप वंडर. क्या बात है, कैन आई राइट इट लाइक दिस. अभी हमने देखी तलवार, आप देखिए उस पिक्चर का डायलॉग, एक जुमला झूठा नहीं है. तो ये क्वालिटी भी तो है, यू हैव टू अप्रिशिएट दैट. तो कुछ अच्छा कुछ बुरा,
जो इमोशनल डेप्थ है वो थोड़ी अभी कम लगती है, थोड़ा और होना चाहिए। वो क्या इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो गया है। पहले इतनी थिएट्रिक्स हो, इतनी माँ और ये वो इतना ड्रामा होता था कि ये जनरेशन को इतनी चढ़ाई को उधर निकल गई। ये इक्वल एंड ऑपोजिट जो रिएक्शन है वो भी गलत है। आई फील इन सॉन्ग्स, in scenes, there is a kind of a hesitation and shyness about emotion. That is also wrong. Don't be theatrical. But emotion तो है ना जिंदगी में भाई, उससे क्यों आज रोमांटिक गाना नहीं होता है? People think that it's too therapy. अब क्या रोमांस बंद होगा? मुझे मालूम तो बताओ। होता नहीं होता आजकल? हाँ होता है तो ठीक है, फिर क्या? पिक्चर में नहीं होता वो। देखो रोमांटिक गाना या तो उसे बॉयस्टर्स कर देते हैं और या कॉमेडी कर देते हैं, मगर एक रियली रोमांटिक मोमेंट हो और रोमांटिक गीत हो अब होता ही नहीं, बिकॉज दे आर एम्बैरेस्ड अबाउट इमोशन। दे फील अरे ये तो हम वही कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। Raju sir, when cinema is getting realistic, our audience finds it difficult to adjust to it because apparently then it's said because if a dark film is made, then they're like, no, it's too dark. This is not how the society operates. So then what does the director, for that matter, or a scriptwriter take from it? That then how are you supposed to make a film? If you're going towards the realistic side, then the audience apparently you have to be clear what is your target audience. Okay. You know, if Raju Saab is speaking at a seminar, he'll speak in different language with different metaphor. If he is making those same very points to 10,000 people, then he'll speak in a different language. He'll make the same point. आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप एड्रेस कैसे कर रहे हैं, पहले तो आप ये क्लियर हो जाइए। अगर आपने स्पीच तैयार की सेमिनार के लिए और 2 लाख आदमी में बोल के आप बोल रहे लोग सुन नहीं रहे, तो गलती आपकी है। फिर वो वैसी स्पीच आपकी होनी चाहिए। मैं कंटेंट न चेंज कीजिए, मगर कम्युनिकेशन आपका ऐसा होना चाहिए जो 2 लाख आदमी तक पहुँचे। जहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, बहुत ही स्कॉलरली लोग हैं, इवॉल्व थिंकिंग के लोग हैं, वहाँ आप दूसरी लैंग्वेज में दूसरी तरह से बात करेंगे। तो जो सिनेमा है वो अगर आप एक नीश ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट, कि भाई मुझे खुशी होगी, भाई इतने लोग देख लें मेरे लिए काफ़ी है और मैं इन्हें एड्रेस कर रहा हूँ। मैं आम आदमी अप्रिशिएट करे, अच्छी बात, नहीं करे कोई बात नहीं, आप बनाइए वैसे पिक्चर। आप अगर आम आदमी से बात करना चाहते हैं तो आपको उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, देन ही हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ सिनेमा जो उसके साथ चलती है, उस ट्रेडिशन की आप इज्जत करें। तो एक बहुत अच्छी बात लेनिन ने कही थी, लेनिन ने कहा था कि लीडर वो है जो लोगों के आगे चले, लेकिन अगर वो इतना आगे चले कि लोग देख ही ना पाए तो उसे फॉलो कैसे करेंगे? कितनी अच्छी बात है। तो ये एक बैलेंस चाहिए, यू हैव टू पुश द एनवेलप, बट हाँ टू सम एक्सटेंट मोर एंड मोर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो सुपर डुपर हिट फिल्में हैं आप उन्हें देखिए, ये वही हैं जिन्होंने एनवेलप पुश किया। ये बैठे हैं बराबर में, जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जिस पिक्चर ने पहली बार 300 करोड़ छुआ तो पब्लिक ने पसंद किया होगा तो 300 करोड़ छुआ। इन्होंने उस एनवेलप को पुश किया था। पीके 99% लोग उस सब्जेक्ट को दे वोंट हैव टच्ड इट विद अ बार्ज पोल। तो ऐसा नहीं है कि आप एनवेलप पुश नहीं करें और फिर आप समझें कि हम सुपर डुपर हो जाएंगे। वही लोग होते हैं बड़े जो धीरे सरकाते हैं आगे, लेकिन अब आप उठा के एनवेलप वहाँ रख देंगे जहाँ बच्चे की नज़र ही ना पहुँचे तो फिर वो नहीं आएगा। Raju sir, do you think Ranbir Kapoor can completely transform into a Sanjay Dutt on screen? How do you see it? How do you visualize it? Like for instance, the reason why I ask is when Priyanka Chopra was cast for Mary Kom, there were a lot of sections that said probably she doesn't look like Mary Kom, there is no essence or feeling. So do you have any such concerns as far as Ranbir Kapoor goes? See, देखिए, whenever you make a film on someone, आप बायोपिक बनाएंगे किसी के ऊपर भी, तो आपको 100% वो फेस तो मिलेगा नहीं। गांधी भी जब बनी तो बेन किंग्सले को कास्ट किया गया तो 100% वैसे दिखते नहीं थे, वो उनकी हाइट वैसे नहीं थी। मैं आपको किस्सा एक बताता हूँ। हम लोग जब लगेरा मुन्ना भाई बना रहे थे तो उस वक्त भी यही हुआ था कि हमको एक दिलीप प्रभाकर जी गांधी जी का रोल कर रहे थे, तो बाकी रिसर्च तो कर ली हमने, चलो ऐसे दिखते थे, ऐसे कपड़े पहन लेंगे, ओवरऑल लुक कर लेंगे, कैसे बात करते थे उसके हमने काफ़ी टिप्स निकाले। एक जगह पे हमको डाउट आया कि उन गांधी जी की हाइट क्या थी, वी शुड कास्ट समबडी हु इज ऑफ दैट हाइट। हमने किताबों पे किताबें पढ़ डाली। अभिजात जी जो अहमदाबाद में
पले बड़े हैं, उन्होंने गुजराती में किताबें निकाली, वो महादेव जी की डायरियाँ निकाली, सब में, मगर कहीं भी गांधी जी की हाइट का मेंशन ही नहीं है। और हम लोगों ने फिर हम ठीक है, हमने प्रभावली जी के साथ शूट कर ली फिल्म। 2 साल पहले की बात है, मैं गेरवाड़ा जेल गया, वहाँ ये प्रिजनर्स लोग एक प्ले कर रहे थे जिसमें संजय दत्त भी था, तो मुझे उन्होंने उस टाइम इनवाइट किया था कि आप आके चिल्लर जेल में प्ले हो रहा है तो आप आके देखिए। तो मैं वहाँ गया, तो मुझे जेलर इससे साहब, पहले आप वो हाइट बता दें, मैं एक गेस देना चाहता हूँ। हाँ, मेरा ख्याल है कि गांधी जी की हाइट 5'9" के करीब थी। अब बताइए। अब बताता हूँ मैं। मेरे साथ हुआ ये, मैं जेल पहुँचा तो वो जेलर ने मुझे जैसा एक चक्कर लगवाया, तो वहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने म्यूजियम सा बनाया, गांधी जी वहाँ पे 2-3 बार रह चुके थे, तो वो उस कोठरी में लगे जहाँ वो रहे थे, तो वहाँ पे एक बाहर एक फ्रेम करके एक कागज़ चिपका हुआ था, जो कॉपी था कि जब भी कोई कैदी को लाया जाता था उनके पास नाम, पता, उनका हाइट, उनका वज़न, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड किया जाता था। तो वहाँ पे उनकी हाइट मेरे को पहली बार 2 साल के बाद देखने को मिली, वो थी 5'3". 5'3"? 5'3"? हाँ, तो अब ये never looked that short। तस्वीरों में ऐसा नहीं महसूस होता। हाँ, वो क्योंकि बेन किंग्सले ने प्ले किया जो खुद लंबे थे। तो आपकी बात पे आने पे कि आई थिंक बियॉन्ड पॉइंट ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तकरीबन उस किस्म का एक इंसान, तो मुझे लगता है रणबीर एक स्टार दिखता है, वो संजू को बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो उनको कहानियाँ सारी उसकी पता है, तो इंटरनली तो एटलीस्ट वो वैसा प्ले कर पाएगा। और 5 मिनट में आदमी जब इंसान फिल्म देखना, अगर वो फिल्म में घुस जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन। Sir, but story-wise, do you think the section where you will be showing the true Sanjay Dutt to the audience, you have also said that you will be showing the underworld side of this, do you think that would be the most difficult part for you to direct as a director? Because you also said that you were, you know, that's the part where you're a bit this about touching that part. See, बायोपिक आप जब बनाने जाते हैं, मुझे लगता है लाइफ किसी की इतनी ज़्यादा होती है कि 3 घंटे में सिमट नहीं सकती। आप गांधी भी ले लें, एटनबर्ग की गांधी, वो मुझे बहुत ही खूबसूरत फिल्म लगी थी वो। उसमें भी देखें तो आप उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि उनके बच्चों के साथ कैसे संबंध थे उनके, वो उसको उन्होंने उस एरिया को टच ही नहीं किया है, वो अलग है। तो इसमें भी हम हर एरिया को टच नहीं कर पाएंगे जो हमको लगता है कि अहम है उनकी। But you will be touching the underworld section. So my question is, would that be the most difficult thing for you? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये डिफ़िकल्ट है, ये ज़्यादा इजी है। हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, जब वो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये कोई डिफ़िकल्ट है, कम डिफ़िकल्ट है। Is the name Baba? We haven't fixed a name yet. अभी तक नाम नहीं रखा है। Okay. So this question is to you, sir. You've written beautiful stories, you've written Sholay, and today we see people remaking films. So what is your take on? No, there's no harm in remaking film at all. As a matter of fact, would you remember that 10 Commandments was made 3 times? Martin Scorsese जैसे डायरेक्टर को जिस फिल्म पे डायरेक्शन का ऑस्कर मिला, इट वाज अ रीमेक ऑफ फार ईस्टर्न फिल्म। बहुत सी पिक्चरें रीमेक हुई हैं और बहुत अच्छी तरह से हुई हैं और बहुत बेहतर बनाई गई, लेकिन कुछ क्लासिक्स ऐसी होती हैं। अब मतलब गॉन विद द विंड को अगर कोई रीमेक करे तो नादानी होगी, बिकॉज उस सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम था, पॉसिबिलिटी थी, वो इस्तेमाल कर ली गई। या कल को आप गॉडफादर जो ब्रांडो जिसमें थे शोले बनाने लगे हैं, तो अब वो उसके ऊपर नहीं जाएगी, तो या साउंड ऑफ म्यूजिक जो बनी थी, अब वो जैसी बन गई, वो रॉबर्ट वाइस की बनाई हुई पिक्चर, वो परफेक्ट है, अब उसे छोड़ दो। बट देयर आर पिक्चर्स विच लेंड देमसेल्फ, बिकॉज उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस ज़माने में वो बजट नहीं थे, वो इफ़ेक्ट नहीं आप ला सकते थे, या वो कहानी अब जो थोड़ी सी डेटेड हो गई, उसे आप मॉडर्नाइज करके, ज़्यादा एनर्जाइज करके एक इंटरेस्टिंग फिल्म बना सकते हैं, देन यू शुड डू इट। नो, हम देवदास है, मतलब अगर देवदास रीमेक नहीं हुई होती तो हमारे पास दिलीप कुमार की देवदास ही नहीं होती, विच इज़ बिमल रॉय जो कैमरामैन थे पहली बरुआ की देवदास के, उन्होंने ये पिक्चर डायरेक्ट की और व्हाट अ फिल्म ही हैज मेड। तो शिल वी से कि देवदास बिमल रॉय को नहीं बनानी चाहिए थी? आई वोंट से दैट, बिकॉज आई लव दैट फिल्म। तो डिपेंड करता है कि आपने क्यों इसे चूज़ किया रीमेक करने को, और उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन हुआ कि देखिए वाकई अगर ये दोबारा ना बनी होती तो ऐसा ना होता। Ram
Raju sir, do you think it will get increasingly difficult for celebs to now openly express their opinions on socio-political issues? I think जैसा मैंने अभी कहा कि वो I think the media needs to be very responsible at some level of not highlighting whatever is. कई बातें कही जाती है जनरल फ्लो में, कई बातें कही जाती है, उसमें से अगर चूज़ करके उस चीज़ को हाईलाइट कर लिया जाए तो मुझे लगता है उसका गलत असर होता है, उसका नेगेटिविटी कुछ फैलता है. तो आई थिंक वी ऑल नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल समवेयर. Okay. So finally, when will Sanjay Dutt biopic be ready? By what, any date that you have in mind? We will start mid next year, so year and a half from there. 2017? Yeah, 2017. Thank you. Thank you so much, sir. बाजीराव मस्तानी बहुत ही अच्छी फिल्म है. मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है. मैं तो बस आती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी और एक्टिंग करती थी. बट इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड आई थिंक पीपल विल रियली एंजॉय इट. आई एम वर्किंग